Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you're also preparing pretty well for your CSIR as well as SET examination. So this is the next part or the next video of the free crash course series by bio.com, and in this video I will provide insights of the UV visible spectroscopy because questions are very often from this topic. B section में भी questions आते हैं and also in the C section. So this is the important topic for both CSIR as well as SET examination. So only a single video will be helpful for you to solve any questions related to the UV visible spectroscopy. So stay tuned and do watch the complete video as well as the previous video of the series to get more benefit from it, and hit the like button and subscribe my channel for more such content. अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी की, सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ नथिंग बट द इंटरैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हाउ इट इंटरैक्ट्स विद डिफरेंट मैटर, एंड वो अगर लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो कैसे उसे डिफरेंट कलर में डिस्ट्रीब्यूट करके रिफ्लेक्ट बैक करता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर एनालाइज्ड इन द स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो on the basis of different types of waves, there are different kind of spectroscopy. For example, NMR. So NMR is based on the radio waves. NMR जो है वो किस पे based होता है? It is based on the radio waves. So इस टाइप की questions भी आ सकते हैं CSIR के C section में या फिर SET examination में. And अगर हम बात करें infrared radiation की, if we talk about the IR radiation, so it is in the IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड अगर हम लोग बात करें UV लाइट की, सो UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की, सो इट इज़ द UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड अगर हम लोग बात करें एक्सरेज की, सो व्हाट काइंड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एक्सरे, सो इट इज़ द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी. So on the basis of different types of waves, there are different kind of spectroscopy. So today we will focus on this UV visible spectroscopy because this is very much important. This diagram is showing the UV visible spectroscopy, and through this diagram only we will clear our whole concept that how a UV visible spectroscopy works and how it measures the concentration of an unknown sample. So the UV visible spectroscopy is based on the principle that is known as the Lambert-Beer law. According to this principle, there are two laws which are combined together and therefore known as the Lambert-Beer law. So a biomolecule absorbs light at a characteristic wavelength, just like as the tryptophan which absorbs the light at 280 nanometers. हर एक बायोमोलिक्यूल के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी एक सर्टेन वेवलेंथ पे. जस्ट लाइक कि ट्रिप्टोफेन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्टोफेन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है किस पे? 280 नैनोमीटर्स पे. सो एज लाइक एज ट्रिप्टोफेन जिसका जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है वो है 280 नैनोमीटर, लाइकवाइज हर बायोमोलिक्यूल का एक अपना एक वेवलेंथ होता है जिसपे वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करता है, यानी कि मैक्सिमम जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करता है एंड जो रिफ्लेक्ट बैक होता है उसके बाद हमें एक एब्जॉर्बेंस मिलता है. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ एब्जॉर्बेंस, व्हाट इज़ ट्रांसमिटेंस एंड व्हाट इज़ लैम्बर्ट-बियर लॉ, and how this law works to find out the unknown sample concentration. So इसमें क्या होता है, एक light source होता है and after the light source there is a monochromator. What monochromator will do? So when a light passes through this monochromator, the monochromator will only filter the light of a single wavelength. यानी एक light source हम यहाँ से एक broad spectrum light provide कर रहे हैं एंड उसके बाद हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटर लगाया. मोनोक्रोमेटर विल सिलेक्ट एंड ट्रांसमिट अ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. सपोज आप अगर सेट करते हैं कि आपको सिर्फ 500 नैनोमीटर का लाइट चाहिए तो ये सिर्फ 500 नैनोमीटर की ही लाइट को फिल्टर करेगा. एंड सपोज अगर आपको 200 चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए, सो ऑल दीज फिल्टर इज डन बाय मोनोक्रोमेटर. यानी कि एक वाइड लाइट्स का सोर्स आपने दे दिया, वाइड स्पेक्ट्रम, एंड उसके बाद आप चाहते हैं कि उसमें से सिर्फ एक सर्टेन वेवलेंथ की ही लाइट फिल्टर आउट होके आए, सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय द मोनोक्रोमेटर. देन the monochromator will pass a light of a single wavelength that is known as the incident light which is represented by the I naught. यानी I naught represent करता है the intensity of the incident light
that is passed from the monochromator, and that light will pass through a cuvette which will consist of your sample of different concentration of path length L. यानी path length इस पूरे cuvette का है L, and कुछ amount as per the concentration of the sample will be absorbed and rest of the light will be transmitted back, which will be detected by a detector. In case of the UV visible spectroscopy, एक कंप्यूटर स्क्रीन लगा होता है जिसमें से हम एब्जॉर्बेंस क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. हमारा यहाँ पे क्यूवेट रखा हुआ है एंड इन द क्यूवेट वी हैव पुट अन अननोन सैम्पल. अब अगर ये सैम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा, इफ़ द सैम्पल इज़ हाईली कंसनट्रेटेड, तो वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड ओनली अ मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड बैक. इसका क्या मतलब निकल गया, अगर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है, इफ़ द एब्जॉर्बेंस इज़ हाई देन द ट्रांसमिटेंस विल बी लो. इट मीन्स कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप है इन बिटवीन द ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस. एंड अगर किसी सोल्यूशन का, लेट सपोज कि देयर इज़ अ सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज़ very much low, then its transmittance will be, transmittance क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, because absorbance will be low. Absorbance will be low. So I am explaining this because ये हर मायने में तोड़ मोड़ के और अलग अलग sentences में पूछा जाता है. So you only have to remember the key point. अगर आपके क्यूवेट में ऐसा सोल्यूशन डला है विच इज़ हाईली कंसनट्रेटेड, जो बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, that will absorb most of the incident light and it will reflect only a small amount of light, यानी कि transmittance बहुत कम होगा and therefore क्या होगा, वो solution highly concentrated होगा. Let's suppose कि अगर आपने 100, यहाँ पे मैं बस एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अगर आप 100 बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हैं एंड एब्जॉर्प्शन हो गया 60 लाइट का, 60 लाइट बीम का, सो ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बिकॉज 100 तो क्या हो गया, 100 टोटल लाइट आपने प्रोवाइड किया था लाइट बीम, 60 जो है वो एब्जॉर्ब हो गया एंड ट्रांसमिटेंस क्या हो जाएगा, 40. दिस विल बी योर transmittance. So this is the concept of the absorbance as well as the transmittance. So what will be the formula of absorbance? So the formula of absorbance will be log I naught upon I. That is I naught क्या था, intensity of the incident light, ये incident light था, and I क्या था, transmitted light. So this will be the absorbance. So absorbance is represented by capital A and it is the ratio of log I naught upon I. So ये आपको ध्यान रखना है. एंड यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो पाथ लेंथ है दैट इज़ L विच इज़ डिटरमाइंड इन दी सेंटीमीटर. ये जो L है इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे आपको हमेशा मोलार एक्सटेंशन कोफिशिएंट का यूनिट आपको पूछा जाएगा. सो व्हाट इज़ दिस मोलार एक्सटेंशन कोफिशिएंट, सो वो भी देखते हैं हम. So the measurement of light absorption by a spectrophotometer is used to detect and identify a molecule and to measure its concentration. जो मैं अभी इतनी देर से समझा रही थी, जो मेजर पर्पज़ है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, that is for to determine the concentration of a unknown solution. So the fraction of the incident light which is absorbed by a solution at a given wavelength, suppose यहाँ से आपने एक light source दे दिया, so monochromator will filter a signal wavelength and then as per the concentration of the solution it will absorb the incident light. यानी as per its concentration बोलने का क्या मतलब है, अगर वो highly concentrated होगा तो बहुत ज़्यादा absorb करेगा and अगर less concentrated होगा, dilute होगा, so it will absorb less and after that it will transmit rest of the light. जो absorb नहीं हुई वो क्या हो जाएंगी, transmit हो जाएंगी. So it will depend upon the concentration of the solution. So together this law are known as the Lambert-Beer law, which is given by log I naught upon I is equals to epsilon CL. So this epsilon is known as the molar extinction coefficient, which is expressed in liter per mole centimeter, and this C is the concentration of the absorbing species, that is concentration of the solution, which is in moles per liter, and L is the path length. As I have mentioned, it is measured in centimeter.
So this Lambert-Beer law assumes that the incident light is parallel and monochromatic. Monochromatic means single wavelength, and the solvent and the solid molecules are randomly oriented. So मैंने absorbance का भी बता दिया. Now this is very much important, ये हर बार आएगा. Now हम questions कुछ solve करके देखते हैं कि हमारा concept clear हुआ है कि नहीं हुआ है. So यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो C है it is expressed in moles per liter, यानी कि ये मोलैरिटी में इसका कंसंट्रेशन मेजर किया जाता है, ये सेंटीमीटर में रहता है. एंड एप्सिलॉन का कंसंट्रेशन एक क्वेश्चन के थ्रू पता कर लेते हैं क्या रहता है. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन एब्जॉर्बेंस ए इन लैम्बर्ट-बियर लॉ, यानी एप्सिलॉन का कंसंट्रेशन आपको पूछा गया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. सो दिस इज द राइट आंसर, यानी जो हमने फॉर्मूला लिखा था log आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट CL. सो इसका जो यूनिट होता है इट इज गिवन इन ऑप्शन ए, दैट इज लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस यूनिट. सो वन मोर क्वेश्चन कैन बी अराइज फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट व्हाट इज एब्जॉर्बेंस एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू ट्रांसमिटेंस, यानी एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में क्या रिलेशनशिप है. सो हमें पता है एब्जॉर्बेंस इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द सोल्यूशन, यानी एज पर द कंसंट्रेशन क्या करता है सोल्यूशन, लाइट को एब्जॉर्ब करता है. कौन से लाइट को, इंसिडेंट लाइट को. एंड जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता वो ट्रांसमिट बैक हो जाता है. सो व्हाट वी कैन से एब्जॉर्बेंस कैन बी डिफाइंड एज द लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रांसमिटेंस, यानी एब्जॉर्बेंस का सीधा सीधा डेफिनेशन हो जाएगा लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ ट्रांसमिटेंस, यानी ट्रांसमिटेंस का ऑपोजिट ही तो एब्जॉर्बेंस होता है. जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ दैट इज ट्रांसमिटेंस, एंड जो एब्जॉर्ब हो गया दैट इज एब्जॉर्बेंस. सो ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ट्रांसमिटेंस इनवर्स ऑफ ट्रांसमिटेंस. सो ये वाला फॉर्मूला भी आपको हमेशा याद रखना है. ए इज इक्वल्स टू inverse of the transmittance, log of the inverse of the transmittance. So absorbance का जो फॉर्मूला था that is log I नॉट अपॉन I. सो वो जो है वो इक्वल किसके था, एप्सिलॉन CL. सो ये कहाँ से आया था, ये आया था absorbance is directly proportional to the concentration of the solution and it is also proportional to the length of the path length of the cuvette. सो इसको कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड द पाथ लेंथ. सो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए क्या डाला जाता है, एक कांस्टेंट डाला जाता है. सो इट इज़ द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड देयरफॉर द फॉर्मूला. सो ये यहाँ से आया. नाउ यहाँ पे एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या था, इंसिडेंट लाइट अपॉन द ट्रांसमिटेड लाइट. एंड ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ट्रांसमिटेंस का फॉर्मूला इसका ऑपोजिट होता है, दैट इज द आई अपॉन आई नॉट, यानी द ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन द इंसिडेंट लाइट. सो यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि अगर आप मान लो कि 100 लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, 100 लाइट को पास कर रहे हो किसी सोल्यूशन से, एंड ट्रांसमिटेंस अगर उसका 20 है तो एब्जॉर्बेंस कितना होगा, उसका एब्जॉर्बेंस होगा 80, बिकॉज यहाँ पे 20 लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, यानी कि एब्जॉर्ब 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80 लाइट एब्जॉर्ब हो गया. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉमन इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो रिमेंबर इट, यहाँ पे आपको एब्जॉर्बेंस याद रखना है एंड ट्रांसमिटेंस याद रखना है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मैं बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहती थी, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व एनी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, एज वेल एज अगर आपको एब्जॉर्बेंस निकालने बोला जाए या फिर बोला जाए आपको कि ट्रांसमिटेंस कैसे निकलेगा. सो आई होप आपको अब बन जाएगा. सो वॉच इट एंड डू प्रैक्टिस इट, एंड अगर आपको कोई डाउट हो सो यू कैन राइट इट डाउन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.